warm welcome to each one of you. I'm really blessed to have you in my room. Thank you for trusting me. Today, we are going to learn a very important topic, that is how we can gain the confidence. I will be giving you the two beautiful ways. पहला है, stop criticizing yourself. How many of us do that? If the things don't get done the way we expect from ourselves, we immediately start criticizing ourselves. तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया. Why did you not do it the way it was supposed to be done? Don't we do this with ourselves? What does it do to you? It kills your self-esteem, which brings down your confidence. So I would like to say कि जब भी कोई भी चीज wrong हो रही हो आपकी लाइफ में, don't start criticizing yourself. Just see that what is the thing behind it, why you were not able to do, because as a human, we never ever want to disappoint ourselves. We always try to do our best and give our best because we want to be the best, right? So we have to find out the reason why that thing happened instead of criticizing. And the moment we find out the things that these are the reasons why I was not able to do, that time we have to find the solution and not stay stuck there. And have you noticed that same condition, same situation, if it happens with your loved ones or with your friend, what do you do? Do you criticize them? Do you go and criticize why you did not do this? तुमने तो ये commit किया था, तुमने ये क्यों नहीं किया? What do you say? You sympathize with them. अरे कोई नहीं यार, अभी नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा. See क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ. हम दूसरों को ये एडवाइस दे देते हैं that if something is not going in your favor, then find out the solution and we give them the sympathy. Why can't we become our own best friend? Why can't we take the responsibility ourselves कि हम ये कर सकते हैं? कोई ना कोई रीजन जरूर होता है कि which has pulled us behind. It can be because of the outside circumstances or it can be because of our own willpower also. तो अगर first of all we have to list down कि what were the reasons that has stopped us from doing that thing, क्योंकि जब तक हम लोग वो चीज नहीं find out करते हैं ना, we keep punishing ourselves कि why I was not able to do it. And ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के भी कॉन्फिडेंस को नीचे लाने के लिए. Whenever we are not able to achieve things, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन चला जाता है. And the moment we gain something, जहां पे भी हमको कोई भी सक्सेस मिलती है, our confidence shoots up to do the next thing, then the next thing. तो वो एक डोमिनो इफेक्ट होता है. वो अगर अप के लिए वर्क करता है तो वो डाउन के लिए भी वर्क करता है. सो हमें अप वाला तो स्टॉप करना ही नहीं है बिकॉज वी वांट सक्सेस ऑलवेज. बट हाँ, जब भी डाउन हो रहा है तो वी हैव टू स्टॉप इट बिकॉज वी डोंट वांट टू रिड्यूस आवर सेल्फ एस्टीम, वी डोंट वांट टू रिड्यूस आवर कॉन्फिडेंस. What we need to do is just figure out the ways and be compassionate to yourself. जैसे आप एक फ्रेंड के साथ कंपैशनेट होते हो, वैसे ही खुद के साथ भी हो कि यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक हो गया है, इट्स ओके, यू आर ह्यूमन. यू कैन गो अहेड एंड मूव अहेड with whatever that things are stopping you. You can just overcome it. You have to just find out the ways. जब जैसे ही आपको पता चलता है कि this things, suppose take an example कि if I am going live on Instagram, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल. एंड what happens, जब मैं लाइव जा रही हूँ तब सडनली मेरा वाईफाई या इंटरनेट चला जाता है. Was it my fault?
कि वाईफाई एंड इंटरनेट चला गया, बट दैट रिड्यूसेस आवर कॉन्फिडेंस कि जैसा मैंने सोचा था ना वैसा तो हुआ नहीं, मेरे को जैसे परफेक्ट वे में लाइफ जाना था ना मैं नहीं जा पाई. सो व्हाट? नाउ हियर टू थिंग्स कम्स इन पिक्चर. वन इज द थिंग्स दैट आर अंडर योर कंट्रोल, तो आप एक्शन ले सकते हो कि आई कैन मतलब अगर मेरे कंट्रोल में है, जैसे कि अगर कोई मैं लाइव जा रही हूँ, कोई क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ या कुछ मैं बोलना भूल गई हूँ, तो दैट आई कैन इमीडिएटली लाइक इम्प्रूव कि मैं 1 सेकंड के लिए पॉज लेके आई कैन लाइक से द थिंग अगेन, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है तब. बट वाईफाई चला गया, इंटरनेट चला गया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. देन अगेन आई हैव टू चेक द टेक्निकलिटीज कि वो क्यों गया. तो जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है तो वी हैव टू टेक द चार्ज एंड इम्प्रूव इट. एंड जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. वी हैव टू लिव इट, बट डोंट लेट इट इफेक्ट योर कॉन्फिडेंस. तो दिस इज द मेन थिंग कि अगर आपको लगता है, जैसे अभी ये मैंने एक्सटर्नल इवेंट्स की बातें की, लेकिन अगर आपको खुद की क्वालिटीज में कुछ कमी लग रही है कि आई एम लेजी या आई प्रोक्रेस्टिनेट या आई एम स्कैर्ड, मैं ये चीजें नहीं कर पा रही हूँ, तो दीज आर ऑल योर इंटरनल थिंग्स. हियर यू कैन वर्क आउट. यहाँ पे आप काम कर सकते हो. तो वॉट यू हैव टू से टू योर सेल्फ, आई एम लेजी अप अंटिल नाउ, नॉट आफ्टर दिस. मैं आज तक लेजी थी, मैं आज तक प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, मैं आज तक डरती थी, पर अब नहीं. नो मोर, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे इन माई पावर, स्टे इन माई कॉन्फिडेंस. मुझे नीचे नहीं जाना है, मुझे ऊपर जाना है. तो मेक दिस अ मंत्र ऑफ योर लाइफ. जब भी आप जिस भी चीज में नीचे जा रहे हो ना, से एड दिस 3 वर्ड्स टू इट, अप अंटिल नाउ. इसके बाद नहीं होगा. एंड वैसे मैं बोलूं, रियल लाइफ से बोलती हूँ मेरे खुद से, फिर भी होता है. ऐसा नहीं कि हमने आज बोला और आज ही ये मंत्रा वर्क करने लग गया कि अप अंटिल नाउ, तो अब होगा ही नहीं. अगेन से ना, अगेन से कीप सेइंग टिल द टाइम यू मेक इट योर इंटरनल क्वालिटी कि आज के बाद अप अंटिल नाउ आई विल नॉट बी, आई एम लेजी अप अंटिल नाउ, आई प्रोक्रेस्टिनेट अप अंटिल नाउ. फिर से हुआ, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो. वन डे विल कम व्हेन यू विल बी नो मोर लेजी. One day will be there when you will no more procrastinate, because you will be like sure कि अब तो भाई मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं चीजें कर सकती हूँ. लेकिन उसको टाइम लगेगा टू गेट दैट मसल बिल्ट. इट रिक्वायर्स टाइम एंड दैट वी नीड टू गिव इट टू आवरसेल्फ. एंड आई टेल यू, लाइफ इज नॉट अ स्प्रिंट की बस भागते 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 रहना है. We have to stop, we have to pause, we have to reflect what is going wrong and what corrections we can do. The moment we realize कि यहाँ पे ये चीज wrong हुई है, ठीक है, up until now this was not working for me, but now I am going to figure out why it is not working for me. Let me find out the solution. Solution आप खुद से ढूंढ सकते हो, दूसरों की हेल्प लेके ढूंढ सकते हो, कोचेस की हेल्प लेके ढूंढ सकते हो. There are n number of things where you can find the solutions, but you do not see it. आप वहीं पे स्टक हो जाते हो, ये तो हो नहीं रहा है, बस खत्म, चैप्टर ही क्लोज कर देते हो. Don't we do that many times? करिश्मा, जयश्री, रामकिशन, हम स्टक हुए तो बस छोड़ देने का क्या? Is that the way to level up our confidence? No, right? So we have to keep working on it. कि हम जब भी कोई भी चीज में नीचे जा रहे हैं, find out the solution why it is not working for it and all the possible ways to make it work. Karishma is saying, yeah, one should keep working on it. हाँ, and I am telling you guys, अगर हम लोगों ने छोड़ा नहीं ना उस चीज को, if we kept doing it, we didn't give up,
one day we are surely going to succeed. पर अगर हमने 3 4 5 बार करके छोड़ दिया, thinking that I am not capable of doing it, मुझसे नहीं हो रहा है, तो नहीं होने वाला है वो. क्योंकि success does not have shortcuts. We have to work for it. यहाँ पे कोई भी सक्सेसफुल पीपल जो भी है यहाँ पे हमारे आसपास जो भी हमें दिखते हैं, go and check out in their life how many times they have failed. ऐसा एक भी सक्सेसफुल पीपल नहीं, पर्सन नहीं मिलेगा जो कभी फेल नहीं हुआ लाइफ में, जिसने हर बार लाइक सक्सेस पाई हो. वहां तक वो पहुंचते ही इसलिए है क्योंकि जितने फेलियर्स आए दे हैव ओवरकम ऑल ऑफ देम. और वो कैसे होता है? नॉट बाय क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ, डेफिनेटली नॉट. वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ दैट वी कैन डू इट एंड मेक थिंग्स वर्क फॉर अस नो मैटर व्हाट. जब हमें इतना बिलीव होगा ना हमारे खुद पे, और हम अपने आप को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे ना, then the wonders will start happening and then we will reach what we desire. So this is the first thing कि सबसे बड़े आप अपने सपोर्टर बनो, ना कि अपने क्रिटिक. क्योंकि क्रिटिक के लिए तो यार दुनिया पड़ी हुई है. There are so many people around us जो हमें स्टॉप करते हैं, including our family members. Why you want to do this? जो चल रहा है चलने दो ना. होता है कि नहीं होता है? But does our heart believe कि जो चल रहा है चलने दे? नहीं, right? We want to work for our dreams. We want to do the things that we want, that gives us joy. हाँ, तो जब दुनिया हमारे लिए क्रिटिसाइज करने के लिए बैठी है, तो why add one more person? हम खुद को क्यों ऐड करें उसमें? एटलीस्ट हमें तो हमारा सपोर्ट करना चाहिए ना. So become your biggest supporter rather than your biggest critic, and that will help you to increase your confidence. The day you decide कि मैं खुद के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खुद को गिरने नहीं दूंगी, then the magic will start happening. Then you will become unstoppable. फिर कोई दुनिया से आके कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, you will say मैं नहीं मानती. Whatever you are saying कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, क्यों तुम्हें करना है, you will say मैं नहीं मानती कि ये नहीं होगा. I believe in myself. I will do it. I will do all the things that are required to make it a reality of my life. And that day ना, वो जो भी हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे. एंड जब हम उस सक्सेस पे पहुंचेंगे ना, वही सेम लोग आके बोलेंगे कि यार मुझे तो पता था तुम कर लोगी. जो आपको आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वही कल आपके सपोर्टर बन जाएंगे. बिकॉज सक्सेस इज द स्वीटेस्ट रिवेंज. अगर आपको किसी से कभी रिवेंज लेना है ना, बोल के कभी नहीं लेना. यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी. करके दिखाओ. उसको बोलो अब तू देख, तू मुझे बोल, सामने वाले को बोलो अब, मतलब सामने वाले को नहीं भी बोलो तो खुद के मन में बोल लो, he or she has told me कि I can't do it. Now I will show you कि मैं कैसे करके दिखाती हूँ इस चीज को. And this you can take it as a negative fuel, but for a positive thing, right? So ऐसा नहीं है कि ये सारे जो लोग हैं वो लोग हमें बाद में नहीं सपोर्ट करेंगे. They will become our biggest supporter the moment they realize यार इसने तो कर लिया. So don't bother about the other people being criticizing, but आपको खुद का क्रिटिक नहीं बनना है. आज से ही ये एक मंत्रा बना लो कि कोई भी मेरा क्रिटिक हो, आई डोंट केयर, मैं खुद की बिगेस्ट सपोर्टर बनने वाली हूँ. द मोमेंट यू डिसाइड दिस ना, आधी चीजें तो वही सॉल्व हो जाती है. सो ईच वन ऑफ यू, आई वांट, जो भी इस रूम से जा रहा है वो तो पक्का अपना क्रिटिक कभी नहीं बनेगा.
Be your greatest supporter. Always, always, always. Do not criticize yourself. And now comes the second important thing, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में काम देगा. That is taking 100% responsibility of your life. Now you will say कि अगर मुझे ही मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो बाकी लोग क्या करेंगे जिनके लिए मैं करती हूँ. क्योंकि वी ऑल्सो, एवरीबडी ऑफ अस वर्क फॉर अदर्स ऑल्सो. तो सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्यों? तो दैट आई लाइक टू एक्सप्लेन कि अगर हम लोगों को लाइफ में कोई ऐसा सपोर्टर मिल रहे हैं, हमारे फैमिली वाले या हमारे फ्रेंड्स या कोई भी, तो दोज आर द पीपल हु आर बोनसेस इन आवर लाइफ. वो भगवान ने हमें बोनस दिया है. लेकिन द मोमेंट वी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ, वी गेट इन आवर पावर कि कुछ भी हो करना मुझे ही है. और अगर उन्होंने करके दिया तो दैट इज अ सेलिब्रेशन टाइम कि यार मुझे किसी ने और सपोर्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है. जिसको मिल रहा है सपोर्ट, वेल एंड गुड, यू आर लकी इनफ. बट नहीं मिल रहा है, दैट शुड नेवर बिकम योर ऑब्स्टिकल. उसको कभी अपने लिए रुकावट मत समझो. डू नॉट थिंक कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं कर सकती. बिकॉज वी एज अ ह्यूमन बीइंग have the power, have the potential in ourselves. just उसको टैप करने की जरूरत है. Here many of the women are mothers here, I can see. तो आपको लगता है कि you had the मतलब कभी ऐसे लगा कि आपके बच्चे पे किसी दिन, टचवुड कभी हो ना, लेकिन किसी दिन कोई भी मुश्किल आई तो जो चीज आपने कभी की नहीं है वो भी आप कर दोगे उसके लिए? बिकॉज एज मदर्स हम में कहां से पावर आती है ना हमारे बच्चे के लिए खड़े रहने की. वो तो शायद हमारा इंटरनल बीइंग ही जानता है. या फिर एज अ फादर कैसे वो पावर आती है. क्योंकि हम लोग ना हमारे खुद के लिए भले करे ना करे, हमारे बच्चों के लिए तो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ और जो पावर चाहिए ना, वो पता नहीं कैसे भी करके आ ही जाती है. वी वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर आवर किड्स एंड बेस्ट फॉर आवर फैमिली. जिस दिन हमारी फैमिली के ऊपर भी कोई भी ट्रबल या कुछ भी आता है ना, तो जो चीज हमने जिंदगी में कभी नहीं की होती है ना, वी गो अहेड एंड डू इट विथ व्हाटएवर इट टेक्स. हम जाके कर देते हैं, बस हमें पता भी नहीं होता है. जब वो हो जाएगी ना तब फिर लगेगा यार वो मैं ही थी क्या जो जिसने जाके ये सारी चीजें की थी. जैसे सेइंग यस फॉर श्योर. सो दिस इज द थिंग कि जब कोई मुश्किल आती है ना तब हम हमारे पावर में आते, तब हम फोर्सिबली आते हैं. बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो जब हम फोर्सिबली आ सकते हैं तो why can't we come without any force, with our own wish, with our own willpower? जब हम लोग हमारे खुद से वो पावर को टैप करेंगे ना, तो फिर तो देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप अस. जब हमने सोच लिया कि ये सारी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर हम हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता किसी को ब्लेम करने का कि तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, तुमने मुझे वो चीज करके नहीं दी इसलिए नहीं हुआ. ऐसा मोस्टली होता है कि जब हम लोग एज अ फैमिली रहते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीजें लगती है कि दैट पर्सन शुड डू इट फॉर मी. बीइंग अ वुमेन, मैं ऐसे पहले बहुत ऐसा ही सोचती थी कि सब कुछ मुझे मेरे हस्बैंड करके देंगे. मेरे ड्रीम्स है ना वो पूरी करके देंगे. मुझे अगर कहीं घूमने जाना है तो ही विल डू एवरीथिंग फॉर मी. मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो ही विल डू इट फॉर मी. या फिर मेरे बच्चे करके देंगे, या फिर मेरे पेरेंट्स करके देंगे. तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं करके देंगे. मैनी ऑफ टाइम्स वी गेट लकी, जैसे मैंने बोनस होता है.
हमको मिल भी जाती है वो चीज, बट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन देम. वी शुड डिपेंड ऑन आवर ओन सेल्फ, आवर ओन पावर, की व्हाट आई वांट आई क्रिएट इट फॉर माई सेल्फ. जो भी हो, वो जो भी हो, आप जो चाहो वो सब कुछ कर सकते हो. यू हैव दैट पावर. इफ यू डोंट बिलीव, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 2 minutes एंड एक ऐसा इंसिडेंट याद करने की कोशिश करो कि जहां पे आपको लगा कि नाउ द लाइफ हैज लाइक गॉन टू द एकदम नीचे लो लेवल पे चली गई, जहां पे आपको लगा कि अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता मेरा. ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट सबकी लाइफ में होता है जब उसको लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट डाउनफॉल ऑफ माई लाइफ. लेकिन आज की तारीख में भी आप यहाँ पे हो. दैट प्रूव्स कि यू ओवरकेम दैट ऑब्स्टिकल. दैट्स व्हाई यू आर हियर. तो जब आप उस ऑब्स्टिकल को पार करके यहाँ तक आ गए, दैट मीन्स आगे जो भी आएंगे उनको भी आप पार कर सकते हो. It's just the belief that you need to have in yourself. Hi Mona, welcome, welcome. Got late? So guys, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने बोला 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये कैसे होता है. तो वी हैव टू लाइक कमिट टू अवर सेल्फ. छोटी छोटी चीजों से चालू करो. जैसे कि स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्मॉल डिसीजंस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. मैं अभी एक छोटी सी चीज अभी यहाँ पे ही बोलती हूँ कि पिकअप वन स्मॉल हैबिट. एकदम छोटी सी हैबिट कोई भी पिकअप कर लो, whichever that you wish to implement from long time in your life, and do it for just next 7 days. अगले 7 दिन के लिए वो करनी है. It can be as small as reading one page of a book, doing one gratitude daily, doing exercise for 1 minute. इतना तो कर सकते हैं, राइट? एक पेज पढ़ सकते हैं, एक ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं. I want everybody to answer this. कर सकते हैं या नहीं? Just type in the chat box yes or no. Can you do these things? Ashna is saying yes. Karishma, Jayashree, Mona, Ramkishan. Okay, Karishma is also saying yes. Jayashree is also saying yes. Mona is also saying yes. So, and now I want you to type. नहीं, यहाँ पे मत करो, टाइम लगेगा. Type in the WhatsApp group whichever one activity you want to pick, you want to commit for the next 7 days, पर उसे बहुत छोटा रखना. बिकॉज इनिशियली ना हमारा रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है. जब हम वो छोटी चीज 7 दिन के लिए कर लेते हैं ना, वी स्टार्ट बिल्डिंग अवर कमिटमेंट मसल. अगर हमने कोई चीज 7 दिन के लिए कंसिस्टेंटली कर ली, इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस कि यार ये तो मैंने 7 दिन के लिए कर लिया. नाउ एड अप टू इट. फिर उसमें थोड़ा सा और टफ डालो एंड देन डू इट फॉर नेक्स्ट 7 days. एंड ऐसे करते 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 जब आप उसको 1 महीने 21 days ऐसे बोलते साइंटिफिकली, बट आई टेक इट लाइक 1 month तो लगता है कम से कम. तो उतना हमने जब कर लिया होता है तो इट हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर कमिटमेंट मसल्स. एंड जब ये होता है ना कि जो हमने बोला है वो हमने किया है, तो यहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारे होते हैं ना, वो सिंक में हो जाते हैं. लेकिन जब हम जो बोलते हैं और वो नहीं करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस ब्रेन फिर उसको पता चल जाता है ये बोलती है पर ये करती नहीं है. देन इट डजंट ट्रस्ट यू. एंड द मोमेंट सबकॉन्शियस ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, द कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस. थिंग्स स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल. क्योंकि इट सेड कि
only 5% of the time, 5% of the things are done by our conscious brain, रिमेनिंग 95 सारी सब कॉन्शियस ब्रेन में चलती है. तो हमें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को धोखा नहीं देना है, हमें उसको हमारे कॉन्शियस ब्रेन से सिंक में लाना है. एंड हाउ दैट विल हैपन? बाय डूइंग दिस स्मॉल एक्टिविटी consistently and building our commitment muscle. जब हम ऐसी छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं, वन डे यू विल सी कि जब आप कोई बड़ी चीज भी उठाओगे ना, जस्ट बिकॉज यू हैव बिल्ड दिस कमिटमेंट मसल कि जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, व्हाट आई से आई डू, तब ऐसी कोई चीज नहीं होगी दैट यू कैनॉट डू एंड दैट विल बी एबल टू लोअर योर कॉन्फिडेंस. तब आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा खुद पे कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ और मैंने करके दिखाया है. एंड दैट टाइम, बिकॉज योर सबकॉन्शियस ब्रेन नोज if she has said she will do, so it will also trust you and help you in doing things. and ये वाला है ना यूनिवर्सल लॉ भी है कि जब आप अपने आप पे बिलीव रखते हो ना, थिंग्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग फॉर यू. वो जो है ना शाहरुख खान का डायलॉग कि सारी कायनात आपकी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, पर सारी कायनात आपके फेवर में काम करने लगती है. तो दैट इज व्हाई, बिकॉज यू बिलीव. एंड ये वाला है ना साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है. दे हैव डन अ एक्सपेरिमेंट ऑन वेरियस थिंग्स, जहाँ पे ना वो लोग अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में कोई वर्ड बोल रहे हैं तो वो वाटर एकदम अच्छे अच्छे शेप्स में होता है, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ बोलते हैं तो वाटर का शेप ऐसे कुछ डिटोरिएट हो जाता है. तो अगर वाटर जैसी चीज जो कि नॉन लिविंग है उस पे फ्रीक्वेंसीज इतना वर्क करती है, तो हम तो पूरे के पूरे चलते फिरते इंसान हैं, हम पे फ्रीक्वेंसीज कितना वर्क करेगी. तो थिंक व्हेन यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ, आप अपने आप को कितना नेगेटिव वाइब्रेशन में लेके जाते हो. करिश्मा इज सेइंग डॉक्टर इमोटो इन जापान हैज डन एक्सपेरिमेंट. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट. तो ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे हुए हैं जहां पे जो हम सोचते हैं ना, दैट चेंजेस आवर वाइब्स, दैट चेंजेस आवर फ्रीक्वेंसी. तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो भी कुछ सोचते हैं वो होता है. आज नहीं तो थोड़े देर से होगा, लेकिन वो होगा. अजय सही जिस अच्छा अजय हैज मेंशन्ड, जिस चीज को आप चाहो, वन सेकेंड इट वेंट अप, जिस चीज को भी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात भी उसे तुम तक पहुंचाने में लग जाती है. हाँ, थैंक यू फॉर मेंशनिंग इट. सो जब हम लोग हमारी कमिटमेंट मसल को बनाते हैं, वी आर अट्रैक्टिंग, we are increasing our positive vibes, we are increasing our positive aura, and the moment this happens, everything around us start working in our favor. अब जब हम लोगों के सब चीजें फेवर में आ रही है, तो ऑब्वियसली वी आर ड्रिवन टू डू द थिंग्स विद whatever it takes attitude, कि अब तो जो चाहे जो हो जाए, मैंने बोल दिया है तो मैं करके दिखाऊंगी. अब चाहे कोई आके मुझे बोले कि तुमसे नहीं होगा, या कोई बाहर से कोई ऑब्स्टेकल आ गया, या फिर कोई भी ऐसी डीमोटिवेटिंग चीज किसी ने बोल दी, बिकॉज इंटरनली वी नो मैंने बोल दिया है तो मैं तो करने वाली हूँ. अब चाहे जो भी आए प्रॉब्लम्स, आई हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड आई हैव टू वर्क इट आउट, क्योंकि मुझे तो उस नेगेटिव जोन में रहना ही नहीं है. मैंने तो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बोल दिया है कि मुझे तो ये करना है, और उसको पता है मैंने बोला है तो मैं करूंगी. जैसे कि सलमान खान का डायलॉग है
एक बार जो मैंने मेरी कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता. Just like that, if you have done commitment, make sure you do it. ये जिस दिन पावर आपके हाथ में आ गई कि आप जो बोलते हो आप वो करते हो, it is going to be your foundation for whatever you wish to achieve in your life. तो my request here is, आप ये ना कहीं पे लिख लो या कहीं चिपका लो, whatever I say, I do it. एंड फिर उसके बाद बोलो कि आई कैन, आई विल, वॉच मी. जब भी आप जहां पे भी ऐसे जाओगे और आपको ये दिखेगा, आपको रिमाइंडर आ जाएगा. मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ तो मुझे करना ही है, अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास. और मैंने अगर बोल दिया है कि मैं करूंगी और मुझे देखो, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे देखो, देन यू डोंट हैव द ऑप्शन टू बैक आउट. एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हमें पीछे खींचती है, वो क्या होता है, हमारे खुद का विल पावर जो हमें ऐसे आके बोलेगा. इनर वॉइसेस जो होती है ना, आके बोलती तू ये नहीं कर सकती, तू लेजी है, यू आर स्कैर्ड, यू वोंट बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग. पर जब हम हमारे पावर में होते हैं ना, ये सबको बाहर जाना पड़ता है सिस्टम से. जब हमने हमारी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल आएगी तो सही, लेकिन वो लोग आपको नीचे लेकर जाती है या आप उनको हटा देते हो, दैट इज इन योर पावर. जयश्री सेइंग, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ, आई कैन, आई विल. यस, मेक इट अ फंडा ऑफ योर लाइफ एंड दैट विल डेफिनेटली, उसके बाद तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे कि है ना, कोई भी आके कुछ भी बोले, यू विल स्टे इन योर पावर एंड से आपको जो बोलना है बोलते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो बोल दिया तो मैं तो करूंगी. And just have the faith in yourself. Believe in yourself. We should not let these two things go away. क्योंकि ये वाली चीजें ही हमें हमारे पावर में रहने की कैपेसिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है. So guys, these are the two things that I wanted to convey. कि first is stop criticizing yourself and second is take 100% responsibility of your own self, your dreams, your desires, everything. Do not depend on anybody else. So do you have any questions? If you have any questions, I am open to take them. Archana is saying wonderful session. Thank you, Archana. Anybody else? Any questions? Jayashree is saying very clear, no doubts. Thank you, Jayashree.